Now friends, we have another numerical for the instantaneous center. Okay, now numerical is what we have: single slider crank mechanism. Okay, in the diagram you are able to see here, this is the link. Let us consider link 1, which is kept as a fixed link and acting as a cylinder. Okay, here we have crank, link number 2, link number 3 is the connecting rod, and link number 4 is the piston itself. Okay, now the connecting rod OB making certain angle 45 degree with the line of action of the piston. So this dotted line is what? Line of action. What does it mean by line of action? Means piston will move in this direction along this dotted line. Okay, so and link 3 is the connecting rod, link 4 is the piston. So now what we need to find out and what is given, need to find out is what? Locate all ICs. We have to locate all the instantaneous center of the diagram. Second, velocity of the slider. It means we need to find the velocity of slider VA. Okay, certainly it is very clear from this diagram that the velocity of the slider is along the line of action. ओके, यानी कि इसकी वेलोसिटी है वो डॉटेड लाइन के अलॉन्ग ही होगी, कभी राइट साइड में और कभी लेफ्ट साइड में, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. थर्ड वन, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट ओमेगा. ओमेगा मीन्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. सिंस कनेक्टिंग रॉड इज हैविंग पिन जॉइंट, ओके, both at the position A and B, so it will try to rotate about some instantaneous center. So we need to find out the angular velocity of the link AB. So what is given? This crank, link number 2, crank is rotating with the angular velocity 10 radian per second. Okay, so this is given, and length of the link AB, this length is 400 mm and OB is 10 mm. Angle of OB with the line of action is 45. Okay, so you can easily draw this diagram, but first of all we need to find out the number of instantaneous center. Okay, the formula is very simple: n minus 1 by 2. Putting the value of n equal to 4, since we are having 4 number of links, so n is coming out to be 6. so n की वैल्यू क्या आ गई है? 6. so हमारे पास कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे? 6. ओके, सेकंड स्टेप क्या है? हम नंबर ऑफ लिंक्स लिख देंगे 1 2 3 4. पहले वाला लिंक 2 के साथ भी बनाएगा, राइट वाले के साथ जितने भी हैं सभी के साथ बनाएगा. दूसरे वाला लिंक भी अपने सभी के साथ बनाएगा, तीसरे वाला लिंक भी सभी के साथ इंस्टेंटेनियस सेंटर बनाएगा. सो काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ instantaneous center is coming out to be 6. Okay, next we have to locate all the instantaneous center. Since this mechanism is different from the 4 bar mechanism जो हमने last example में किया है. Again 400 mm is large dimension जो आप अपने पेपर के ऊपर नहीं बना सकते हो. So what we need to do, हमें करना क्या होगा? एक्यूरेट डायग्राम बनाने के लिए इस डायमेंशन को चेंज करना होगा, मतलब हमें कुछ सूटेबल स्केल चूज़ करना पड़ेगा. सो मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट से 10 mm इक्वल टू 4 mm. सो इसको 400 बनाने के लिए मैंने दोनों तरफ 40 से मल्टीप्लाई कर दिया है. ओके, यहाँ पे, एंड व्हाट आई एम गेटिंग 400 mm इज़ इक्वल टू 40 mm और 4 सेंटीमीटर. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, we need to convert all these dimension into the suitable scale. Similarly 100 mm किसके बराबर आ जाएगा? 10 mm के बराबर आ जाएगा. Okay, now how to draw? First of all I'll take this point, ये पॉइंट लूँगा, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल है ना, तो मैं 45 डिग्री के एंगल के ऊपर लिंक 2 की पोजीशन शो कर दूँगा, जो कि हमारे पास इसकी डायमेंशन थी लिंक 2 मीन्स OB 10 mm, सॉरी 100 mm था ये.
ओके, सो 100 mm था तो मैंने क्या किया, उसको कन्वर्ट करके 10 mm ले लिया था। तो लिंक 2 की जो डायमेंशन है अभी जो ड्रॉ की है ये वाली, ये 10 mm की मैंने लाइन लगा ली कॉपी पे। कितने एंगल पे? 45 पे। ओके, तो यहाँ से फिर मैंने एक लाइन ऑफ एक्शन बना लिया सीधा। उसके बाद मैंने अपनी कंपास खोल ली फॉर द लिंक 3, कंपास खोल ली कितनी? 40 mm की। इसको सेंटर लिया, यहाँ पे आर्क लगा दी, तो यहाँ पे ये कट कर गया इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। ओके, और इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर जब कट कर गया तो मेरे ये डायमेंशन आगे लिंक 3 बन गया है। तो वहीं पे मैंने एक पिस्टन बना दिया, इसकी डायमेंशन कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, क्लियर है? सो विद दिस मैथड यू कैन ईजिली ड्रॉ द डायग्राम। ये एक्चुअल डायमेंशन, ये इस कन्वर्टेड जो स्केल है हमें उससे बनानी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या है कि हमारे पास कितने सेंटर थे? 6 सेंटर आ गए हैं जो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ओके, सो ये लिंक जितने भी फिक्स लिंक होंगे किसी भी मैकेनिज़्म में उन सभी को मैं सेम नंबर दूंगा। ये मैंने पहले डिस्कस किया। तो मैंने इसको भी 1 दिया तो इसको भी 1 दे दिया है। तो एक ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 और 2 यहाँ पे मेरा सेंटर बन गया है, ये फिक्स होगा। सिमिलरली दूसरा फिक्स कौन सा है? ये देखिए। अच्छा चलिए, तो दूसरा ये वाला लिंक हो गया, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो कौन सा सेंटर हुआ? I23 भी हो गया है। चलिए I23। ओके, सिमिलरली लिंक नंबर 3 जो पिस्टन के साथ पिन जॉइंट बना रहा है, तो ये वाला कौन सा सेंटर हुआ? I34 भी हो गया। ओके, ये 3 मुझे दिख रहे हैं, है ना। अब याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं, ठीक है, अलग अलग जॉइंट के लिए, जैसे कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, जैसे ये पिस्टन स्लाइड कर रहा है, ओके, इनसाइड द सिलेंडर, तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे, सिर्फ इसी लिंक का, लिंक 4 का। ओके, और ऐसे ही ओके, अभी मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अगर मैंने 4 लिंक्स का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उसको मैंने इन्फिनिटी पे बना दिया, ठीक है, तो यही सेंटर 4 लिंक का मैं दूसरी तरफ लिंक नंबर 1 से भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो 4 लिंक का 1 के साथ यहाँ पे सेंटर बना, इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, ये भी बन गया है। उसको मैं यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ, लिंक नंबर 1 यहाँ पे, ये वाली लाइन से भी। ओके, ये मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, ताकि मैं सारे सेंटर को शो कर सकूं, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो अब मुझे क्या बनाने हैं? 1 4 भी हो गया, 1 2 2 3, तो रह गया क्या? 1 3 सेंटर और 2 4 सेंटर। ठीक है, फिर मैंने वही एक सर्कल लिया, 4 लिंक थे, 4 पार्ट में डिवाइड किया, जो सेंटर बन चुके हैं उनको जोड़ दिया। जैसे 1 2 बन चुका है तो 1 2 को जोड़ दिया, 2 3 बन चुका है तो 2 3 को जोड़ दिया, 3 4 बन चुका है तो 3 4 को जोड़ दिया, 1 4 बन चुका है तो 1 4 को जोड़ दिया। ठीक है, क्या रह गया? 1 3 और 2 4। तो 1 3 को मैंने डॉटेड लाइन पहले लगाई, तो ये 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कौन सी ट्रायंगल है? अब एक तो इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 वाली है, ये दोनों वाली। दूसरा क्या है? 2 3 वाली। ओके, और दूसरी तरफ ट्रायंगल क्या है? इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 4 वाला है और 3 4 वाला है, ये दोनों है। यानी पहले मैं 1 2 वाला पॉइंट देखता हूँ, ये रहा 1 2 वाला पॉइंट, 2 3 वाला पॉइंट ये रहा। तो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करना शुरू किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, इसको यहाँ पे कट कर दिया, तो ये मेरा सेंटर बन गया। कौन सा? I13। सिमिलरली 2 4 के लिए मैंने दूसरी तरफ ट्रायंगल ले लिए। कौन कौन सी? टू 4 के लिए एक ट्रायंगल आ गई है मेरे पास 1 2 वाली इंस्टेंटेनियस आईसी की, और एक आईसी 1 4 की आ गई है। दूसरी तरफ आईसी 2 और 3 की आ गई है। ओके, 2 और 3 की आ गई है और 3 एंड 4 की आ गई है। चलिए पहले 1 और 2 की ले लेता हूँ, ये रहा मेरा पॉइंट अगेन 1 और 2। फिर
1 और 4 कहाँ पे है मेरा, देखिए अब वो पॉइंट आ रहा है। 1 और 4 था मेरा इन्फिनिटी पे इस तरफ, और 1 2 यहाँ पे है। तो इन दोनों को जोड़ना तो बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, ये जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि वो तो इन्फिनिटी पे है 1 और 4, अगर मैं पिस्टन की तरफ से देखता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको कंसीडर कर लिया इसी तरफ से पैरेलल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिंक नंबर 2 है। तो 1 2 मेरा था ये वाला पॉइंट, ठीक है, और 1 4 कौन सा था, इन्फिनिटी पे यहाँ पे पहुँचा हुआ है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। दूसरा 2 3 कहाँ पे है मेरा, ये रहा 2 3, और 3 4 कहाँ पे है, ये रहा। इसको भी दोनों तरफ से अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ पे जाके कट कर जाता है, यानी मेरे पास I24 कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया है, ठीक है। सो मेरे पास 6 के 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट हो गए हैं। ओके, ये थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूँ डायग्राम। ताकि आप लोग इसको बना सको। चलिए, नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना था, जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया था। एक तो एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी थी इसकी ओमेगा, और एक लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी थी इसकी v से लीनियर वेलोसिटी a की, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसकी, लिंक b और a की, यानी b की पॉइंट की कर दूंगा क्योंकि b पॉइंट a b के ऊपर है। तो जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी b की होगी वही एंगुलर वेलोसिटी a b लिंक की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे क्रैंक जो रोटेट कर रही है उसकी वेलोसिटी दी हुई है ना। एंगुलर वेलोसिटी कितनी, 10 रेडियन। अगर मुझे रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है ना तो ऑटोमेटिकली ये ओमेगा है, ये n नहीं है। n क्या होता है, RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो अगर मुझे n दिया होता है तो मैं ओमेगा कैलकुलेट करता हूँ। वो कैसे, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 से, तब ये रेडियन पर सेकंड में निकलता है। ओके, तो अभी मुझे सीधा रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं सबसे पहले बी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा मुझे दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, 10 रेडियन पर सेकंड। और लिंक आर क्या मतलब क्या है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना बी पॉइंट, ओ के अबाउट, तो ये लिंक की जो लेंथ होगी वही आर हो जाएगा। वो कितनी मुझे दी हुई है, 100 mm। 100 mm का मतलब क्या हुआ, 0.1 मीटर, ठीक है। दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास लीनियर वेलोसिटी आ गई है b की 1 मीटर पर सेकंड से, वो भी परपेंडिकुलर टू द OB, वो हमेशा ही OB के परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, अब मुझे पता क्या करना है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी किसकी, OB की। सिंस OB की जो लीनियर वेलोसिटी है वो आई है 1 मीटर पर सेकंड। वो कब आई है, जब मैंने B पॉइंट को कंसीडर किया OB के ऊपर। अब यही B पॉइंट AB के ऊपर कंसीडर करके मैं सिंपल अपना एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, है ना। लेकिन मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए AB लिंक जो है वो किसी इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर मैं देखूँ तो AB लिंक ये था, ये इस तीसरा लिंक था, बिल्कुल तीसरा ये रहा। तो किसके अबाउट, फिक्स लिंक के साथ उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ये रहा। ओके, यानी मुझे B पॉइंट यहाँ था, तो ये वाला डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये वाला। तो जैसे ही मुझे वो क्या पॉइंट था, ये पॉइंट था I, ये वाला, ये डिस्टेंस मुझे मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, रेडियस फॉर दिस पॉइंट B। जो B पॉइंट है वो इस I13 के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये रेडियस हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4 ओमेगा AB, कंसीडर B ऑन द लिंक 3, B को लिंक 3 में कंसीडर कर लूँगा, एंड मेज़र इज डिस्टेंस फ्रॉम I13 से इसका डिस्टेंस मेज़र करूँगा। तो जब मैंने मेज़र किया ये मेरे पास तकरीबन 56 mm आ रहा है, ओके 56 mm आ गया। तो मैंने क्या कन्वर्ट यूज़ किया था कि 10 mm इक्वल टू 1 mm, है ना।
अब मैं दोनों तरफ 56 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ, तो मेरे पास आ रहा है ये तकरीबन 56 mm, और मैंने स्केल क्या लिया था 10 mm इक्वल टू 1 mm। मुझे 56 चाहिए है ना, तो क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ, सॉरी ये था स्केल, तो दोनों तरफ मुझे 56 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 56 बनाना था ना इसको, ठीक है, यही आ रहा है ना, मैंने अब रिवर्स करना है। तो मेरे पास कितना आ गया 560 mm। ओरिजिनली अगर आप ओरिजिनल डायमेंशन से बनाते तो ये वाला डिस्टेंस 560 mm आना था, तो यहाँ पे मैं वही कंसिडर करूँगा 560 mm। ओके, और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 0.56 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 0.56 मीटर। ओके, सिमिलरली ओके ठीक है 0.56 मीटर, तो वो ठीक है। सिमिलरली मुझे अब ए पॉइंट, ये जो पॉइंट था ए, ठीक है, इसका भी मुझे इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर से डिस्टेंस मालूम करना होगा। सिमिलरली फाइंड आउट I13A बाय मेजरिंग विद स्केल, इट्स कम्स आउट टू बी 46 mm, एंड आफ्टर कन्वर्जन जब उसको मैं कन्वर्ट करूँगा ओरिजिनल में वो 460 mm हो जाएगा, मीटर में कितना हो जाएगा उसका डिस्टेंस 0.46 मीटर। ये दो पॉइंट्स के आगे हैं। ओके, अब ओरिजिनली हमारे पास यही फार्मूला होता था जो हमने डेरिवेशन की थी कि अगर किसी रिजिड लिंक के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं या 3 पॉइंट हैं, ठीक है, तो उनकी आपस में वेलोसिटी रिलेशन क्या होगा। सो अब मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक ए और एक बी, तो वी ए ओवर I3A, वी बी ओवर I3B, यानी ए पॉइंट का उसके इंस्टेंटेनियस सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये वाला मैं बता देता हूँ। I13 का ये वाले पॉइंट से, ये ए पॉइंट था मेरे पास, ठीक है ना, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मेज़र करना था। ओके, तो वो मैंने मेज़र किया था, वो आया था 460 mm, तो 0.46 मीटर बन गया था। ओके, दूसरी तरफ मैंने वी भी ले लिया और उसका डिस्टेंस ले लिया उसके IC से। ओके, क्लियर है। अब एक ही सेंटर क्यों लिया मैंने I13 क्योंकि दोनों ही पॉइंट एक लिंक के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे VA पता करना था, तो VA मेरे पास कितना आ गया, I13 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सभी वैल्यूज़ हैं मैं पुट कर दूंगा, 0.82 आ गया VA। ओके, अब मुझे पता करना था एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये वाला, यानी इन दोनों में से किसी को भी मैं इसके इक्वल ले लूँगा, ये फार्मूला इसके इक्वल आ गया है। तो यहाँ से चलिए मैं इसको VAB इक्वल टू ईदर ऑफ, दोनों में से किसी के बराबर ले लूँगा, ठीक है, तो VAB किसके बराबर आया, VB, यानी VB, ये मैंने VB वाला ले लिया है और नीचे ये वैल्यू पुट कर दी 0.56, तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। थैंक यू।